ओके, सो लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? एटम्स हो गया था, एटॉमिक मास एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। वी हैव स्टार्टेड विद मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया था। मॉलिक्यूल वाज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, in fact smallest neutral particle of an element or a compound which is capable of independent existence, right? This was the statement we have seen for molecule. Now molecule में कुछ चीजें पढ़ी थी हमने, like atomicity. Atomicity was what? Number of atoms which combine to form a molecule. This is known as atomicity. On the basis of atomicity, we have classified the molecules as monoatomic, diatomic. Monoatomic में helium देखा था हमने, monoatomic molecule है. Then diatomic जिसमें दो atom होते हैं, nitrogen, oxygen, carbon monoxide. Then we have seen triatomic, tetraatomic, and then polyatomic in general. In general, we say they are polyatomic. एक 4-5 से ज़्यादा रहेगा तो we call it polyatomic. Then molecular mass we have discussed in last class. What was molecular mass? This is easy to define or describe or imagine. Suppose I want to write molecular mass of methane, CH4. So methane I know is made up of carbon and one carbon atom and 4 hydrogen atoms. And atomic mass we have already defined. So atomic mass of carbon is known. If it is a carbon 12 isotope, then mass of CH4. If I want to write, then carbon का atomic mass is 12, hydrogen का it is 1, so 4 into 1 that is 16. So 16 atomic mass unit or 16 unified mass जो भी है, that is. So atomic mass of carbon is known, hydrogen is known, तो start कर दिया, तो this gives you mass of one molecule. So मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अगर मुझे डिफाइन करना हो तो वापस जैसे किसके लिए डिफाइन किया था हमने, मास ऑफ वन एटम के लिए, तो we can define mass of molecule in a similar manner. How? Mass of molecule, mass of a molecule is how many times heavier, how many times heavier. आ रहा नहीं ये सब समझ में? नहीं आया तो बताते जाना, थोड़ा स्लो जाऊंगा फिर. How many times heavier a molecule is as compared to mass of carbon atom, taking it as 12. Take 12 units, right? So this is mass of a molecule in atomic mass units, AMUs, or that unified mass, right? So this is how we define molecular mass or mass of one molecule. Then यहाँ पे भी एक word होता है ग्राम molecular mass. जैसे वहां पे ग्राम एटॉमिक मास था, यहाँ पे ग्राम molecular mass, GMM से usually denote करते हैं. What is gram molecular mass or GMM? Mass of a molecule expressed in grams. GMM is what? Mass of a molecule expressed in mass of a molecule expressed in grams. GMM. Mass of a molecule expressed in grams is known as gram molecular mass. Now, थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगेगा. व्हाट इज मेन कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज सपोज मास ऑफ मीथेन, मास ऑफ CH4 मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 16 AMUs. मास ऑफ CH4 is 16 ग्राम. ये दो अलग अलग स्टेटमेंट लिख दिया हमने. वहां पे भी हमने लिखा था एटॉमिक मास में वी हैव यूज्ड टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स. फर्स्ट आई हैव रिटन मास ऑफ अ सिंगल एटम इन AMUs एंड देन आई हैव एक्सप्रेस्ड द मास ऑफ द सेम एलिमेंट इन ग्राम्स. तो यहाँ पे भी पहले मैंने AMUs में लिखा, बाद में ग्राम्स में. तो ये 16 ग्राम का
ये एक एटम का मास है, तो ये कितने ये एक मॉलिक्यूल का मास है, तो दिस इज मास ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, राइट? तो GMM ग्राम मोलिकुलर मास is mass of 6.022 into 10 raised to 23 molecules of that substance. Yeah. Yeah. GMM is what? GMM is mass of 6.022 into 10 raised to 23 molecules of that substance. I'll write few molecules. You have to find a molecular mass. 2-4 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे. हाँ. So find molecular mass of बहुत कॉमन से हैं, इनका मोलिकुलर मास निकाला था. ठीक, जस्ट प्रैक्टिस के लिए. These are few common compounds, बहुत यूज होते हैं, उनका आपको मोलिकुलर मास निकालना है. फॉर एग्जांपल C2H5OH. तो C2H5OH क्या होगा मोलिकुलर मास इसका? 46 ग्राम. 46 ग्राम. लेट्स सी हाउ. कैसे? कार्बन का एक एटम का मास 12 है into 2 प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है, ऐसे 6 एटम्स है, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है, उसका मास है 16 ग्राम. So total is 24 plus 6 plus 16. This is 46 gram. So molecular mass of C2H5OH ethyl alcohol is 46 gram. Right. Now C6H12O6 इसका कितना होगा? 180. कैसे? Let's see. So 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16. So this is 72 plus 12 plus 96. So this is 84 plus 96. That is 180. Yeah. Next. Glucose था C12H22O11. शुगर है, क्या है इसका मोलिकुलर मास? 342 ग्राम is gram molecular mass of C12H22O11. आ रहा है ना सबको? कोई आंसर नहीं कर रहा है. कैलकुलेशन की प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए. सिंपल कैलकुलेशन से 12 molecules into 12 grams plus 22 molecules in 1 gram, 11 molecules into 16. So this is 144 plus 22 plus 176. So 320, 342 gram is answer. Right now? Yes. आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, next is H2SO4. Sulfuric acid. H2SO4. 98 gram. 98 gram. 2 molecules into 1 plus 1 molecules into 32 plus 4 molecules into 16. So 2 plus 32 plus 64, that is 98 gram. दो बार बच्चे हैं, करो. None. HNO3. नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या होगा? एक हाइड्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है. तो 1 plus 14 plus 48, तो 53, sorry 63.
HNO3 63. नेक्स्ट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड COH वोल्ट वाइज कितना हो गया? कॉपर का 63.5, 2 ऑक्सीजन है तो 2 into 16 प्लस 2 हाइड्रोजन 2 into 1 तो 63.5 प्लस 32 प्लस 2 so 34 63 97 point so 97.5. Clear na? Now once you know how to find molecular mass, दो एक क्वेश्चन और करते हैं what is gram molecular mass, उसके बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं. जैसे पहला है find number of carbon oxygen nitrogen and hydrogen atoms in 30 gram of urea. Urea is NH2CONH2. So find number of carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen atoms in 30 grams of urea. 30 ग्राम यूरिया लिया आपने, उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये सब आपको निकालना है. Just calculate gram molecular mass of this. Gram molecular mass of urea NH2CONH2 atoms हैं into 14, हाइड्रोजन के 6 atoms हैं into 1, कार्बन का 1 into 12, ऑक्सीजन का 1 है 1 into 16. So this is 28 plus 6 plus 12 plus 16. So 28 28 56 है, कुछ गलत हो गया, अरे सॉरी 4 तो 60 ग्राम, राइट. तो ये हो गया आपका 56 28 plus 20 56 plus 4 60 ग्राम. तो 60 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 60 ग्राम ऑफ अमोनिया, सर यूरिया. 60 ग्राम यूरिया में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 into 10 raised to 23. इतने मॉलिक्यूल्स हैं. तो 30 ग्राम में कितने होंगे? इट्स अ सिंपल यूनिटरी मेथड, राइट. तो हाफ करना है, तो इसका हाफ लिया तो इसका भी हाफ हो जाए. So 30 ग्राम यूरिया में this many molecules of urea are there, right? So how many molecules in 30 gram of urea? 6.022 into 10 raised to 23 molecules, right? अभी मैंने आपसे एटम्स पूछे, कौन से? सबसे पहले पूछा आपसे कार्बन. सो कार्बन के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स हैं? एक ही है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इतने होंगे. Therefore number of carbon atoms in 30 gram यूरिया is, एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन एटम है, तो इसमें भी एक ही आएगा, तो 3.011 into 10 raised to 20. The number of oxygen atoms in 30 gram यूरिया. एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? एक ही एटम है, तो इतने में इतने ही आएंगे, तो वंस अगेन 3.011 into 10 raised to 23. तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन के कितने हो गए? सो एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है एटम है, तो इसमें भी इसका डबल हो जाएगा, तो 6.022 into 10 raised to 23. फिर फाइनली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका 4 टाइम्स, उसका डबल, तो 12.044 into 10 raised to 20. That's answer. ये आंसर हो गया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं. अगर नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करा दूं, आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं. परसेंटेज कॉम्पोजिशन. Percentage composition means what? Percentage of constituent.
compound. For example, suppose there is a compound AB, right, which is made up of two elements that are A and B. कोई पूछेगा percentage mass of A in compound AB, तो आप कैसे बोलोगे? तो हम लोग क्या लिखेंगे? Atomicity with respect to A, right? जैसे यहाँ पे समझो AX BY है, तो atomicity with respect to A of the compound is X, मतलब A के कितने atoms हैं यहाँ पे X, तो atomicity with respect to A into atomic mass of A divided by molecular mass of the compound AXBY into 100. This is percentage mass of A in compound AXBY, right? Similarly, percentage mass of B in compound AXBY is what? Y into atomic mass of B upon molecular mass of AXBY into 100. So this is how we find percentage of constituent elements by mass. एक कंपाउंड में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनका कितना परसेंटेज है मास के रेशियो, मास के रिस्पेक्ट. सो दैट इज व्हाट वी से परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड. तो दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे भी. क्वेश्चन है वही पुराने कर देता हूँ. कैलकुलेट percentage of carbon, nitrogen, oxygen and hydrogen in urea. ये निकाल. So this is logic. तो NH2CO NH2 चाहे तो एक का मैं निकाल लेता हूँ. तो percentage of carbon in compound is how much? कार्बन के कितने एटम्स हैं? एक ही एटम है, उसका मास कितना है? 12 अपॉन टोटल मास मैंने निकाल रखा था 60 into 100. So 20% हो गया कार्बन. सो कार्बन का 20% है, राइट. अभी आपको बताना है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का एंड हाइड्रोजन का. डू इट. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. एटॉमिसिटी उसका 2 है, मास 14 है, डिवाइड बाय 60 है, इनटू 100 है. तो कैंसिल हो गया, 3 हो गया, 140/3 दैट इज 46.67%. तो 46.67%. फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है? 26.6. एटॉमिसिटी 1 है, मास उसका 16/16 into 100 हो गया. तो ये हो गया 8, हो गया 3, 80/3 26.67% हो गया इसका ऑक्सीजन का. फाइनली बचा हाइड्रोजन. तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मच? हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 6.66. 4.1 divided by 60 into 100. एक काल 40/6 20/3 6.67%, राइट. तो ये हो गया आपका. तीनों चारों का ऐड करोगे तो 100% आएगा. दिस 0.67 वो 2 हो जाता है. तो 8 34 एंड दिस इज 80 प्लस 20. ऑब्वियसली डिनोमिनेटर जो भी लिखा है उन सब का टोटल न्यूमरेटर में था, तो 100 नहीं है. ओके, एक और क्वेश्चन करता है. परसेंटेज of nitrogen in any compound is 3.5%. Calculate minimum molecular mass of that compound. Substance लिख देता हूँ. Have a compounding that substance. Let's write substance. So percentage of nitrogen in any substance is 3.5%. वो compound है basically.
calculate minimum molecular mass of that substance. मिनिमम मॉलिक्यूलर मास सोचना है आपको कितना होगा, कम से कम कितना हो सकता है. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फिक्स है. सवाल ये है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए. सी अच्छा, पहले ये सॉल्यूशन नहीं बता रहा, पहले आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूं. से ये किसी एग्जाम का आया वो क्वेश्चन है. से ओनली वन atom is there, atom is present in a molecule and mass of molecule be x. मुझे मालूम नहीं कितना है, mass of molecule be x. Therefore percentage mass कैसे निकालते थे आप? नाइट्रोजन का एक ही एटम है तो 1 into 14 out of total mass into 100 ऐसे निकलता है. बट as per them this percentage is 3.5. तो x का वैल्यू कितना होगा? 14 divided by 3.5 into 100 that is 400 हो गया. तो 400 ग्राम आना चाहिए था. ओके, let us assume say two atoms are present in a molecule and mass of तो molecule 800 be आएगा. x. तो 800 आएगा. तो आपको खुद नजर आने लग गया होगा कि भाई ये मॉलिक्यूलर मास मिनिमम होना मतलब एक ही एटम प्रेजेंट होना. सी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फिक्स कर दिया मैंने मास में. अब अगर आप एक एटम लोगे नाइट्रोजन का तो सबसे कम मॉलिक्यूल बनेगा, सबसे छोटा मॉलिक्यूल बनेगा. अगर आपने 2 एटम्स ले लिए तो डबल साइज का बन जाएगा. ट्रिपल 3 ले लिए तो 3 टाइम्स मास हो जाएगा. तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होने के लिए exactly 1 nitrogen atom should be there and hence minimum mass molecular mass of that substance is 400. तो ये आंसर है हमारा 400. में अगर नाइट्रोजन उसमें है तो नाइट्रोजन एक एटम होगा, 2 एटम होगा, 3 एटम होगा, 100 एटम होंगे, कुछ भी. तो यहाँ पे परसेंटेज फिक्स है. तो अगर एक एटम होगा तो उसके हिसाब से पूरा मॉलिक्यूल बनेगा. 2 एटम होंगे तो परसेंटेज तो उसका फिक्स है, राइट. आपको आया 20% है, नंबर बड़ा कर लेते हैं, आपको आया 80% है, ठीक है. तो अगर 100 मार्क का पेपर होगा, सॉरी अगर 50 मार्क का पेपर होगा तो आपका स्कोर 40 कहलाएगा. 100 मार्क का होगा तो आपका स्कोर 80 कहलाएगा. 400 का पेपर होगा तो आपका स्कोर 320 कहलाएगा. तो जितना छोटा साइज का पेपर होगा उतना कम आएगा, और अगर जितना बड़ा साइज का पेपर होगा उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि परसेंटेज तो फिक्स है. 80% फिक्स कर देते हैं. यहाँ पे नाइट्रोजन का परसेंटेज फिक्स हो गया, राइट. तो अगर मॉलिक्यूल बड़ा करोगे, अगर एक से ज्यादा आइटम लोगे तो ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा. आई होप समझ में आया. नहीं आया तो मैं दूसरे लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं. काव्या समझा? ओके चल, तो ये हो गए छोटे छोटे टर्म्स. नाउ नेक्स्ट अगर बुक में आप देखोगे तो एक सेक्शन बना हुआ है मेजरमेंट के ऊपर. बड़ा आसान सा सेक्शन है, ज्यादा टाइम उसमें मैं नहीं लगाऊंगा. फिजिक्स में वैसे भी डिटेल में है. तो एक छोटा सा टॉपिक है मेजरमेंट. दिस टॉपिक इज देयर इन फिजिक्स आल्सो. फिजिक्स में बहुत डिटेल में है. तो मेजरमेंट एक टॉपिक है. यहाँ पे एक छोटा सा फिजिक्स में पूरा चैप्टर है. इफ यू सी द एनसीईआरटी बुक तो उसमें सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट, राइट. बट यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में 2 पेज का एक पार्ट दिया होगा, बुक रीड करोगे आप तो, ऑन मेजरमेंट. यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है मेजरमेंट में? यूनिट्स, मेजरमेंट में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, थ्योरी पार्ट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एंड थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस. ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस. ये 3 पार्ट है. बाकी वहां पे बहुत डिटेल में फिजिक्स में एरर एनालिसिस है, डायमेंशनल एनालिसिस बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है. प्रिसीजन और सब तो दिया हुआ ही है. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जेईई में पूछते हैं. यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं. यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है. तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे हम लोग. मेजरमेंट, लेट्स सी व्हाट इज मेजरमेंट.
Have you ever measured anything in your life? See, suppose you have measured length of a room. बहुत obvious measurement, ऐसा कुछ नहीं कि आपने नहीं किया होगा. 6 meter and 30 centimeter, या चलो 6 meter ले लो. Mass of a man 60 kg होगा, right? Then time, duration of a class is 40 minutes. तो ऐसे बहुत सारे measurements हमने किए हुए. Time, mass, length, वॉल्यूम. वॉल्यूम भी मेजर किया होगा आप लोगों ने. 2 लीटर वाटर, 2 लीटर ऑफ वाटर, ऐसे बहुत कुछ मेजर किया हुआ है हमने, राइट ना. सो दीज मेजरमेंट्स हैव टू थिंग्स. दीज मेजरमेंट्स हैव टू थिंग्स. सब में देखो आप, एक नंबर दिया हुआ है और एक कुछ तो और लिखा हुआ है, राइट. ये दिस थिंग इज Magnitude नोन and एज unit. यूनिट and this is measure, या number. मैग्नीट्यूड में दोनों ही चीज आती है बेटा. मैग्नीट्यूड में 6 और मीटर दोनों आ जाता है. ये पूरी चीज ही मैग्नीट्यूड कहलाती है. मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली मींस मेजरमेंट, राइट. मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ मतलब मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो उसमें दोनों चीज इंक्लूडेड है. क्या क्या? वो नंबर भी इंक्लूडेड है और यूनिट भी इंक्लूडेड है. बट in general any measurement has two things. One is number and other is unit, right? So कहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है? Suppose you want to measure the length of the room. So measuring anything, say measuring length, measuring volume, measuring mass, measuring time, every measurement involves two steps. In first step में हम क्या करते हैं? We choose standard measure. We choose standard measure of that quantity. जो भी quantity, अगर length की बात हो रही तो उसका कोई एक standard measure हम choose करेंगे. वो standard measure is known as unit, which is known as unit. ठीक है. Trust me, इससे ना एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने वाला है. फिजिक्स में आता है तो फिजिक्स में हम लोग इसको फिर से थोड़ा सा पढ़ लेंगे और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां पढ़ लेंगे. थोड़ा थोड़ा बस नॉलेज चाहिए. तो मेजरमेंट बोलते किसको है? तो मेजरमेंट बोलते हैं, मेजरमेंट में सारी दो चीजें होती हैं. वन इज यूनिट एंड अदर इज नंबर. तो हाउ डू वी मेजर एनीथिंग? आपको अगर मैंने काम दिया कि मेजर द लेंथ ऑफ द rectangular ground, there is a rectangular ground, and if I ask you to measure its length, so what you're going to do is you will choose a standard measure. ठीक है. एक standard measure लेके आओगे. लेंथ के लिए 1 मीटर होता है और नियरली इतना होता है. from one end of your shoulder to end of the other palm, when fully stretched. तो ये nearly 1 मीटर होता है, not exactly, but this is nearly 1 मीटर. तो आप क्या करोगे? एक आपने स्टैंडर्ड मेजर लिया. उस स्टैंडर्ड मेजर को हम लोग बोलते हैं यूनिट. तो वी चूज स्टैंडर्ड मेजर ऑफ दैट क्वांटिटी विच इज नोन एज यूनिट. तो ले लिया. अब क्या करेंगे? स्टेप 2 में विल कंपेयर हाउ मेनी टाइम्स क्वांटिटी को x बोल देना. quantity x is when compared to the unit. ठीक. So this, how many times this fold and this unit together makes measurement. For example, suppose I don't have any measuring instrument, any unit, anything else, and somebody asked, sir, I'll buy a board for you, just send me its measurements. I don't know what is measurement of this this board. So what I'll do is, suppose this marker is available with you as well as with everyone. So I'll choose this as a unit. Let's call it 1 pen. So what I'll do is, I'll check how many folds length of this board is compared with this length. So I'll say this is 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 8.5. So I'll say 8.5 marker pens. So I'll say length of this room is 8.5 pens, right? So what is measurement? Measurement is comparing how many times any quantity is with respect to a standard measure of itself, which is known as unit. तो कोई बोला मुझे अगर ये बोर्ड का लेंथ मेजर करने के लिए, तो आई हैव चोजन अ स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड मेजर. Suppose this marker is available with you and with everyone. So I'll choose length of this as the standard measure. I'll measure every length with respect to this. So I'll choose this one as 1 length, 2 length, and I'll compare how many times the length of this board is when compared with the marker. So I'll say 8.5 marker pens. If someone says what is width, so I'll say 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'll say board length is 8.5 pens and board width is 6 marker, 6 pens, right? आया ना समझ में? तो मेजरमेंट एक ही स्टेप, एक्चुअली मेजरमेंट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट थ्योरी में आसान है. थ्योरी में इट्स नॉट डिफिकल्ट. थ्योरी में हमने क्या समझना, व्हाट इज मेजरमेंट? चूज अ स्टैंडर्ड लेंथ, सॉरी स्टैंडर्ड मेजर ऑफ दैट क्वांटिटी. सपोज आपको मास मेजर करना है, तो चूज अ स्टैंडर्ड मेजर और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मास. नेम इट एज यूनिट. नेम इट एज यूनिट. एंड देन कंपेयर mass of any object with that standard measure, that is unit. तो वो कितने टाइम्स है, that is important. अगर किसी ने मास 60 kg मेजर किया, उसका मतलब है क्या मेजर किया होगा? एक स्टैंडर्ड मास होगा. एक स्टैंडर्ड मास होगा. वो क्या है, वो आपके बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, बट वी डोंट नीड टू रिमेंबर. स्टैंडर्ड मास होगा which is known as its unit, जिसको हमने किलोग्राम बोला, राइट? So this is standard mass. तो standard mass है, उसको यूनिट बोलते हैं किलोग्राम. और किसी ने अपना मास मेजर किया होगा इस स्टैंडर्ड मेजर के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, ऐसे कितने केजी किलोग्राम आपको रखने पड़ेंगे टू मेक 60, राइट? टू मेक 60 ऐसे कितने रखने पड़ेंगे. तो दैट इज व्हाट वी से 60 kg. तो किसी का मास 60 kg है, मतलब क्या है? कोई तो दुनिया में एक स्टैंडर्ड मेजर है जिसको यूनिट बोला है मास का. उस यूनिट का नाम है किलोग्राम. तो उस किलोग्राम के कंपैरिजन में 60 टाइम्स मास उस आदमी का है. 40 मिनट क्या है? व्हाट इज 40 मिनट ड्यूरेशन? टाइम का कोई एक स्टैंडर्ड मेजर होगा जिसको नाम दिया उन्होंने मिनट, राइट? यू आर अवेयर ऑफ दिस. So a duration or a period which is 40 times longer in span than 1 minute is read as 40 minute. अगर किसी ने बोला 2 लीटर, तो वॉल्यूम मेजर करने का एक स्टैंडर्ड मेजर है, राइट? जिसको हमने नाम दिया है लीटर, या वेसल है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है. तो 2 लीटर मिल्क मीन्स व्हाट? Volume of the milk which is twice the measure of the volume of this vessel, तो उसको बोलते हैं 2 लीटर. आई होप आपको मेजरमेंट का मतलब समझ में आ गया. तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट आपको करनी है, तो फर्स्ट स्टेप इज टू चूज इट्स ओन स्टैंडर्ड मेजर. उसी का एक स्टैंडर्ड मेजर लेना है. लेंथ मेजर करने के लिए लेंथ का एक स्टैंडर्ड मेजर लेंगे. मास मेजर करने के लिए मास का एक स्टैंडर्ड मेजर लेंगे. टाइम मेजर करने के लिए टाइम का एक स्टैंडर्ड मेजर लेंगे. तो चूज अ स्टैंडर्ड मेजर, राइट? उसको यूनिट बोल दो आप. फिर कोई भी क्वांटिटी, जो भी मेजरमेंट आपके सामने रखी हुई, आप उस स्टैंडर्ड मेजर से कंपेयर करके देखो हाउ मेनी फोल्ड्स दैट क्वांटिटी इज व्हेन कंपेयर्ड विद यूनिट. ओके, क्लियर ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे होता है टू चूज अ यूनिट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. थ्योरी में कहने के लिए बड़ा आसान लगता है, बट एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड है टू चूज अ यूनिट. बट हम इसमें अंदर नहीं जाएंगे, बस आपको ऊपर से समझाता हूँ क्या होता है. ठीक, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वंस व्हेनेवर वी नीड. आपको 11th और 12th में मोर देन 100 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने मिलेंगे. अब तक ही आप बहुत सारी पढ़ चुके हो. लेंथ, मास, टाइम, एरिया,
many other momentum, force, acceleration, pressure. There are thousands of quantities, density, and जैसे जैसे आप हायर सिलेबस में जाते जाओगे आपको नई नई क्वांटिटीज हर साल मिलती जाएंगी, राइट? टेम्परेचर, हीट, वर्क, पावर, एनर्जी, तो सबके लिए अलग यूनिट नहीं बना सकते, नहीं? तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जहां हमारे लिए चैलेंज है सबके लिए एक एक यूनिट बनाना, राइट? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। तो सबका मेजरमेंट करना है तो क्या सबके मेजरमेंट के लिए क्या आप सेपरेट यूनिट बनाते बैठोगे? क्वेश्चन is it feasible to make separate units for each of them? तो आंसर इज नो। आप सबके लिए एक सेपरेट यूनिट बना के नहीं रख सकते, ठीक है? अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया, रिलेट करना उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे एग्जाम्पल मालूम है, आपको नहीं मालूम होगा, आपके पेरेंट्स को पता होगा, यू कैन आस्क विद देम। एरिया मेजर करने का देयर इज अ यूनिट which has its origin way back from Britishers। तो ब्रिटिशर्स ने एक यूनिट बना के दिया था एकड़, राइट? अब हमको तो एकड़ नहीं मालूम है, बट ये मालूम है कि हाँ इतना एकड़ लैंड है। एंड यूनिट लेंथ की क्या मालूम है? लेंथ का यूनिट मालूम है मीटर, राइट? इफ आई आस्क यू हाउ मेनी मीटर्स बाय हाउ मेनी मीटर्स विल मेक यू 1 एकड़, तो ये आपके लिए एक नया चैलेंज आ गया कि एरिया की यूनिट अलग है एंड इट हैज नथिंग टू डू विथ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर द रिलेशन कि कितने मीटर बाय कितने मीटर विल मेक यू 1 एकड़, राइट? तो ये काम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप पुरानी डायरीज देखोगे तो उसमें बहुत सारी मेजरमेंट, जैसे 5-6 पेज की मेजरमेंट दी रहती थी, इतना इतना रहेगा तो ये है, इतना इतना रहेगा तो ये। बट this problem was simplified, let's see how। अच्छा, ये प्रॉब्लम समझ में आई ना आपको कि I cannot simply make a separate unit for each physical quantity। सबके लिए एक नई नई यूनिट बना के नहीं रख सकता मैं, बिकॉज अगर सबके लिए एक एक यूनिट बनाते बैठूंगा तो वो बनाना तो आसान है, फिर उनको यूज करना मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू यूज दोस फिजिकल units of different physical quantities, right? So they came up with a very good solution। What was the solution? All physical quantities, जितने भी physical quantities पता थे, all physical quantities were categorized as physical fundamental quantities, fundamental or base quantities, and derived quantities। जितनी भी क्वांटिटी है उनमें से सबको उनने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वन इज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, और बची हुई जितनी भी आई डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक? तो बड़ा सिस्टमेटिकली इनने कैटेगराइज किया। जैसे आप कोई क्वांटिटी बोलते हैं लेंथ, तो दे केप्ट इट इन this one। You call it area, so area was in derived quantity। You call volume, volume was in derived quantity। You call density, density again is in derived quantity। You call time, time was taken in a fundamental quantity। Then mass was taken as fundamental quantity, temperature was taken as fundamental quantity, current was taken as fundamental quantity, then luminous intensity was taken as fundamental quantity, then there was another quantity, amount of substance। physics में 2 और quantities लगती हैं, those are supplementary quantities, actually not included in these ones। 2 supplementary quantities है, plane angle and solid angle। वो हम लोग physics में पढ़ लेंगे, अभी छोड़ देते हैं, plane angle and solid। So only these quantities were taken in this one।
बाकी जो क्वांटिटी का नाम बोलोगे एवरीथिंग इज रिटन हियर, एवरीथिंग व्हाटएवर क्वांटिटी यूज है, say density, pressure, whatever name you know, charge, specific heat capacity, whatever quantity you name was included in derived quantity, right? Now what's the logic behind it? क्या logic था? See, अभी they say area of any substance, कोई भी substance ले लो, अगर आप उसके एरिया की बात करोगे तो इट इज ईदर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ लेंथ, ईदर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ। आपको बचपन से जो एरिया का फॉर्मूला सुनाओ, कोई भी एरिया का फॉर्मूला बोलो, एनीवन, पाई आर स्क्वायर, हाँ, एल इनटू बी पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसमें प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ लेंथ है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ है, राइट? तो वो लोग बोलते हैं इसके लिए फिर सेपरेट यूनिट एक क्यों बनाना? डू वन थिंग, लेंथ इनटू लेंथ, दैट इज मीटर इनटू मीटर, तो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर चलने देना। दिस इज लेंथ इनटू लेंथ, तो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर चलती रहेगी। वॉल्यूम, वॉल्यूम का दुनिया जहान में आपने जो भी फॉर्मूला देखा है, दैट इज ईदर प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ अ लेंथ और इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री लेंथ, राइट? तो उसके लिए सेपरेट यूनिट लीटर वीटर क्या बनाने की जरूरत है? डोंट यूज अ वर्ड लीटर और एनीथिंग, यूज मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, तो मीटर क्यूब होगी, राइट? तो उन्होंने क्या बोला, जैसे स्पीड है, स्पीड, स्पीड की कोई भी क्वांटिटी होगी, यूनिट होगी, सॉरी स्पीड जो है दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू अ लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो वो लोग बोलते हैं लेंथ का आपको यूनिट मालूम है, टाइम का पता है, तो एक काम करो ना, उसकी अलग से यूनिट बनाने की क्या जरूरत है, यूज मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। उनने क्या बोला, यार सबके लिए यूनिट बनाएंगे तो खिचड़ी हो जाएगी, 5-6 यूनिट तो बच्चों से याद होती नहीं है, हजारों या क्वांटिटी यूनिट्स कहाँ से याद होंगे, और फिर उनको रिलेट करना कितना मुश्किल है। सो दे हैव क्लासिफाइड ऑल द क्वांटिटीज एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। उन्होंने बोला एक काम करो, इनकी बस यूनिट बना लो, किसकी? सिर्फ ये 7 क्वांटिटीज है, सिर्फ इनकी यूनिट डिफाइन करो, बाकी दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज है उन सबकी यूनिट इनमें से किसी की यूनिट यूज करके बन जाएगी, hence is the name derived quantities. So they have chosen 7 quantities as fundamental quantities or base quantities, right? उनमें से उन सबकी यूनिट उन्होंने बना दी, किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। एंड बाकी जितनी भी क्वांटिटीज बच गई सबको दे हैव कैटेगराइज्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड दे से चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, ये अभी लिख देता हूँ, चलो फिर ये टेबल बना देता हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट, ये बना देता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। हाँ, ट्रस्ट मी इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और ये बहुत स्मार्ट काम था। अगर ये काम नहीं किया होता उनने तो आज आप रो रहे होते, साइंस को भी लेने की सोचते भी नहीं। लॉन्ग टाइम बैक इट वाज रियली डिफिकल्ट, जितनी बुक्स आती थी अलग अलग यूनिट में रहती थी। जो फॉरेन ऑथर्स होते हैं, किसी की बुक फुट और पाउंड में चल रही है, किसी की मीटर में चल रही है, किसी की कुछ में चल रही है, तो बहुत सारी सेपरेट यूनिट्स आती थी। तो उस टाइम में रियली इट वाज डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स टू रिलेट। ये टेबल बस आपको भूलना नहीं है, ये टेबल भी याद रहा तो इट इज इनफ। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: length, time, mass, temperature, current, luminous intensity, which is for brightness, amount of substance. यूनिट क्या चूज किया था? लेंथ का यूनिट चूज किया मीटर, एब्रीविएशन है स्मॉल m, टाइम सेकेंड, एब्रीविएशन है स्मॉल s, मास किलोग्राम, स्मॉल kg, टेम्परेचर केल्विन, वो एक क्या होता है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कन्वेंशन बना रखा, द यूनिट्स विच आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, so their abbreviation is with capital alphabet, right? तो ये कैपिटल के है, केल्विन कैपिटल के, करंट एम्पियर स्मॉल ए से स्टार्ट होगा, यहाँ कैपिटल नहीं लिखना बट यहाँ पे कैपिटल ए लिखना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला स्मॉल सी स्मॉल डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOLE, MOL is its
abbreviation, right? So these are 7 fundamental quantities and their units. चलो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके अगला टॉपिक पढ़ेंगे. I'll stop here. नेक्स्ट क्लास में करते हैं.